Hello students of class 12. Okay. Today I have to discuss in detail what is electric potential, what is potential energy between the two charges, due to the two charges, their units, whether they are vector or scalar, and after that I will discuss and derive expression for electric potential and electric field at a point due to an electric dipole. These points I write electric potential, potential energy due to A or a system of charges, and last में electric potential and field due to an electric dipole. Okay. Then these are the points which are to be discussed in detail. लेकिन not necessary कि साहब all these points that I have written may be detailed today itself. Maybe it's half or all, I can't say. लेकिन but let us start from electric potential. What is electric potential? Dear students, you remember there are several potentials like electric potential, magnetic potential, gravitational potential. A potential जहाँ कहीं भी है, potential is always defined potential energy per unit something. What per unit something? Potential energy per unit mass is gravitational potential. Potential energy per unit charge is electric potential. Potential energy per unit pole माने magnetic pole is magnetic potential. और potential always indicates कि वर्किंग कैपेसिटी क्या है, काम करने की क्षमता क्या है, एनर्जी क्या है किसी चीज़ की. और दूसरी तरफ होता है फील्ड, electric field, magnetic field, gravitational field. Mathematically stating, electric field is negative potential of, the electric field is a negative gradient of electric potential, magnetic field is negative gradient of magnetic potential, gravitational field is negative gradient of negative potential. That is, I may say कि साहब V अगर ये electric potential है, then it will be negative gradient. E माने ये electric field E बराबर minus dV by dr. Negative gradient of electric potential, this is electric field. अगर magnetic field है, then this is minus dV. I write M, everywhere you may not find M, because just to distinguish what is it. People अक्सर write minus dV by dr. यहाँ minus dVm by dr. This is magnetic field, this is electric field. Similarly, gravitational field ये बराबर minus dVg by dr. This is gravitational potential, this is electric potential. This is magnetic potential, this is electric potential. और इसी को अगर इन्वर्स कर दें तो ये implies कि E बराबर होगा माइनस डी भी ई डी आर, ई बराबर, या इसको भी बराबर लिख सकते हैं, भी बराबर माइनस ई डी आर, माइनस यहाँ लिख ही दिया, ये ई डी आर नहीं, यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज ये भी, हेयर इट इज़ भी ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ भी इज़ मैग्नेटिक पोटेंशियल माइनस बी डी आर, यहाँ लिख सकते हैं ये भी जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये माइनस जी डी आर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. Then potential and potential field, this is the relation everywhere in entire physics. You will find these relations. Maybe कि साहब here M is not written, here E is not written, here Vg is not written. Here just to differentiate this, just to distinguish them, I have
suffixed these things, E, M, G. Otherwise in books you may not find it. Everywhere you will find minus dV by dr. नेगेटिव पोटेंशियल. अब कहोगे नेगेटिव क्यों होता है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती है, याद रखना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी माने है, हमने कहा बार बार, यू रिमेंबर द रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पोल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास मैग्नेटिक पोटेंशियल. तो दिस इज़ द रिलेशन. अब हम कह ये रहे थे कि साहब वो पोटेंशियल इकाई मास की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अगर पूरा पोटेंशियल एनर्जी मास के चलते हो तो ये लिखेंगे माइनस G m1m2/r. G इज़ कांस्टेंट देयर, एवरीवन नोज. अब फोर्स को डिस्टेंस से गुना करें तो पोटेंशियल हो जाएगा. फोर्स, ये सब फोर्स है. ये ई फील्ड जो है, ये फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फोर्स पर यूनिट पोल, ये फोर्स पर यूनिट मास, ऑल दीज आर फोर्स. अब फोर्स बराबर हमेशा होता है एफ डी आर, माने एनर्जी होती है. यू बराबर कहीं देखिएगा, यू माने अगर एनर्जी हम लिखें देन इट इज़ रिटन एज माइनस एफ डी आर. नहीं, मास है, ज़मीन इस कलम को खींच रही, इस दोनों के बीच फोर्स है और ये अट्रैक्शन का फोर्स है. इसको हम जितना ऊपर करेंगे इसकी एनर्जी उतना बढ़ेगी. दो चार्ज है, मान लीजिए दोनों पर प्लस चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे को हटाना चाहता है. इसको हम जितना, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, हम जितना इसको इधर करेंगे उतना एनर्जी बढ़ेगी. इसीलिए कहते हैं डी वी लिखा हमने कहीं पढ़ना, या यू डी वी इंटीग्रल कर दिया या डी वी लिख दीजिए, एक ही बात है. डी वी लिखेंगे तो माइनस एफ डी आर लिखेंगे, इंटीग्रल कर देंगे इस डी वी का डी यू का, डी वी लिखें डी यू लिखें, बात इज सेम जी. यहाँ कहीं यू लिखते कहीं एनर्जी है, माइनस एफ डी आर हो गया. और इसी तरह से यहाँ अगर वी एम लिखेंगे तो माइनस बी डी आर लिख देंगे, डी वी लिखेंगे यहाँ तो माइनस ई डी आर लिख देंगे, वी जी लिखेंगे तो माइनस जी डी आर लिख देंगे. देन दीज रिलेशंस यू ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. दिस इज़ पोटेंशियल. अब पोटेंशियल होता है नेगेटिव भी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी. पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में फ़र्क है. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, it is potential, not positive negative. Due to plus charge, potential will be positive. Due to negative charge, potential will be negative. लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लिखेंगे फार्मूला तो ऐसे लिखेंगे माइनस Q1 Q2/4πε0r. अगर यही फील्ड लिखते तो फोर्स लिखते, यहाँ ये एनर्जी लिखा हमने. अगर फोर्स लिखते तो लिखते Q1 Q2/4πε0r². पोटेंशियल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. एनर्जी माइनस प्लस दोनों हो सकती है, बिकॉज कि एक चार्ज प्लस देन ये प्लस, एक माइनस दूसरा माइनस देन ये प्लस. लेकिन बट इफ़ ये प्लस ये माइनस देन इट विल बी माइनस. सो बोथ पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट. कि साहब क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी इज़ नेवर नेगेटिव. काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू स्टेटस, एनर्जी ड्यू टू गड़बड़ पोजीशन, ऐसे एनर्जी ड्यू टू एडवर्स पोजीशन. इस कलम को हम जितना ऊपर करेंगे कलम आना चाहता नीचे, ये पोजीशन, ये वर्क इस गड़बड़ उल्टा, सो इसकी एनर्जी विल इंक्रीज. देन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है प्लस माइनस Q1 Q2/4πε0r. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये ड्यू टू चार्ज लिखा हमने, ड्यू टू चार्ज. अगर ड्यू टू पोल लिखते, मैग्नेटिक पोल लिखते तो लिखते वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर, वहाँ भी प्लस माइनस लिखते, μ0/4π लिखते 2p1, ये p1 p2/r. प्लस माइनस दोनों हो सकता है, p1 p2/r. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स है, ड्यू टू चार्ज या ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स, ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स है ना. फार्मूला याद रखिए, एक चार्ज दूसरा चार्ज, एक पोल दूसरा पोल. और उसी तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल लिखते, ये मैग्नेटिक हो गया, ये इलेक्ट्रिक हो गया. अगर यहाँ ग्रेविटेशनल होता तो लिखते ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ ऑलवेज नेगेटिव. ये हमेशा लिखते यहाँ माइनस बड़का G m1 m2/r, ऐसा लिखते हैं. कहिए भाई इट इज़ ऑल्सो माइनस, ओनली माइनस नेगेटिव. हेयर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव. वाई हेयर इज इट नेगेटिव? बिकॉज के ग्रेविटेशन में देयर इज अट्रैक्शन अलोन. But in electrostat or magnetism, due to charge, due to pole, there is attraction or repulsion both. Attraction भी होता है, repulsion भी होता है. तो attraction के लिए निशान माइनस है,
अट्रैक्शन के लिए निशान माइनस है, यहाँ तो अट्रैक्शन है ही इसलिए माइनस। यहाँ रिपल्शन भी पॉसिबल है इफ़ बोथ चार्जेस आर सिमिलर। इफ़ बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज देन जवाब इज़ पॉजिटिव, इफ़ बोथ आर नेगेटिवली चार्ज देन जवाब इज़ पॉजिटिव, but if one is positive other is negative then jawab is negative. Similarly, if both poles are north then jawab is positive, if both poles are south then jawab is positive, but if one is north other is south then jawab is negative. And here mass में when there are two masses, and we know that mass is not positive negative, so it is always negative, it is always negative. Between two charges there may be attraction or repulsion depending on the nature of charges. Between two poles there may be attraction or repulsion depending on nature of poles, but between two masses there is always attraction, no repulsion. So this is the difference, you should remember, you should note. और इसके बाद तो हम पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला लिखा, ये ड्यू टू चार्ज ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया लेकिन पढ़ना तो सब है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि साहब वो ये बहुत सारा अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने लिखा तो यहाँ लिख देंगे समेशन Q1 Q2 समेशन Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये लिख देंगे। यू नो शायद ये U बराबर ये प्लस माइनस हो सकता है, ये दोनों प्लस होगा दोनों माइनस होगा, जोड़ के समेशन लेंगे, समेशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिया जाएगा। जब समेशन हमने लिखा तो न यहाँ हम प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। मे बी के साथ प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव, मे बी प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव, एनीथिंग मे बी। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा याद रखना 9 × 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होता है सर। और उसी तरह से वहाँ μ0/4 पाई लिखा था कहीं पर, μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर जो भी होता है। और वहाँ जी है, बड़का जी का वैल्यू इज़ हमेशा 6.67 × 10⁻11 और ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन दीज आर द रिलेशंस, ये these are the constant one should remember. Then what are we discussing? Relation between electric potential and electric charge, ये electric field. This is electric field, this is magnetic field, this is gravitational field, this is electric potential, this is magnetic potential, this is gravitational potential. Here it is R, you may not confuse it is V, no it is R. Okay. Now you may copy, you may note, other फिर हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। Now our point of discussion is this: electric potential and field due to an electric dipole. What is potential and field due to an electric dipole? Okay, let us delete it. You see here I draw a figure. The figure is large one, लेकिन ये ठीक है। This is here it is charge minus Q, here it is charge plus Q, okay. And suppose here it is a point, here it is a point, and ये point suppose कि सर इसके mid point से some distance apart, this is a point. तो this is an electric dipole. This distance is to छोटा l, this distance is छोटा l माने पूरा डिस्टेंस इज बड़ा L। इसका नाम कुछ हम रख देंगे, इसका नाम ABC रख देंगे। हेयर सपोज A, इट इज़ हेयर B। चार्ज है इस पॉइंट C पर रखें, D पर रखें, कुछ फील्ड निकालना है। अब हम बनाने के लिए इसको अभी पहले फिगर ही बना देते हैं, उसके बाद ही हम निशान लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा। ठीक, ये निशान ठीक है। इस निशान को थोड़ा आगे भी बढ़ा देते, इस निशान को ऐसे भी कर देते, ऐसे भी कर देते। क्यों करेंगे ये सब बाद में बताएंगे, अभी तो ये देखिए। और फिर इस निशान को थोड़ा हम पीछे हटा देते हैं,
और यहाँ से यहाँ इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। फिर यहाँ से ये बीच में है निशान, यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सपोज़ थोड़ा और इसको नीचे कर देते हैं, साफ साफ रहे। ये यहाँ से ये दिस, यहाँ से ये दिस। देखो देखने में लगता है, फिगर में देखने में लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन है सब बराबर, सब बराबर है। वो फिगर में देखने में बड़ा छोटा भी ड्रॉ ही किया है तो थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। ये m है, ये n है, ये m है, n है, b हटा दो इसलिए कि साहब थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पर ये पॉइंट O है और यहाँ ये पॉइंट, हाँ इस पर ठीक है। ये डॉट डॉट कर दिया है, ये ठीक है ये। तो ये परपेंडिकुलर है दरअसल, इस पर हमने ये लाइन जो है ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचा है। और तो इस पर परपेंडिकुलर खींचें, इससे अच्छा ये है कि साहब उसी पर, एक काम करें, एक काम ज़रा सा गलती इसमें ये है, इससे यहाँ इस पर तो दिखाई देता है परपेंडिकुलर, ये ठीक है, ये ठीक है, इससे यहाँ खींच देते हैं परपेंडिकुलर, ये साफ साफ दिखेगा। नाउ इट इज़ ओके। तो ये पॉइंट O है, इस एंगल को कुछ मान लेंगे थीटा, इस एंगल को भी कुछ मान लेंगे थीटा। इस पॉइंट का नाम O है, यहाँ पर नाम कुछ रख देंगे। ये MN नाम रखा है, यहाँ नाम D रख दें, यहाँ नाम H रख दें, कुछ रख दें, यहाँ पर नाम कुछ रख दें, ये ABCD या P ही नाम रख दें। चलिए, हालांकि P तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा फिर निशान का भी। ये है, यहाँ पर S नाम रख दिया, यहाँ T रख दिया, यहाँ U रख दिया, कुछ रख दिया, यहाँ H रख दिया, H रखा है, अच्छा वो F रख दिया, कुछ रख दिया। चलिए रहने दें। तो ये एंगल जो ये हमने बनाया, ये थीटा है, इसको थीटा लिखा, ये एंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो MN यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये S पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से इंडिकेट कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बड़ा I से इंडिकेट करेंगे। इसलिए हमने बड़ा I भी नहीं लिखा कहीं और वो भी नहीं लिखा। तो क्या क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये MN इज़, फिगर में MN क्या है, MN इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी ये लंबाई L माना है, इसका मतलब MN बराबर 2L हो गया। Here it is positive charge, here it is negative charge. We have to know, we have to find relation for यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट S। OS बराबर कुछ मान लेंगे, OS बराबर R, छोटा r से R मान लेंगे, यानी ये OS इज मिड पॉइंट। ON बराबर OM बराबर छोटा l मान लेंगे, छोटा l से, इसका मतलब दैट इज़ MN बराबर 2L से, MN बराबर 2L से। तो अब हम लोगों को पोटेंशियल निकालना, फील्ड निकालना एट पॉइंट S। क्या करना है बोलिए, करना यह है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको इंडिकेट करते हैं बड़ा ई से, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको इंडिकेट करते हैं V से, एट पॉइंट S पर निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल MN ऑफ लेंथ 2L, इसलिए कि इसको L कहा, ये L देन इट इज़ 2L। R टू बी डिटरमाइंड। क्या है क्वेश्चन अपने लोगों का, क्वेश्चन क्या है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेटेड बाय बड़ा ई, एंड इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख लीजिए, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू में से इट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी कह लीजिए पोटेंशियल V एट पॉइंट S। ये डिस्टेंस कहाँ है, कितनी दूरी पर है, एट पॉइंट S डिस्टेंट, हम लिख देते हैं डिस्टेंट, कितनी दूरी पर, OS बराबर R से, कुछ R मान, छोटा r मान लीजिए, एट पॉइंट S ड्यू टू डिस्टेंट OS बराबर R, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट S, हाँ फ्रॉम लिखना चाहिए, डिस्टेंस OS बराबर R फ्रॉम मिड पॉइंट लिख लीजिए, फ्रॉम मिड पॉइंट O ऑफ एन, एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ हो जाएगी,
of an electric dipole mn ये बराबर 2l ओके देन ये ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल mn बराबर 2l r टू बी डिटरमाइंड ओके r टू बी डिटरमाइंड। क्या निकालना है अपने लोगों को? देखिए फिर हम कहते हैं हम लोगों को निकालना है इस पॉइंट पर इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। अब इसमें हम बताएं कि साहब वो ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या है। ये ओ एम इन फिगर में क्या क्या है इन फिगर, ये ओ एन बराबर ओ एम बराबर छोटा एल है। ठीक है, और ये एम एस ये लगभग बराबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एस एच है। फिगर में लगता होगा कि कम बेश है, लेकिन वो ऐसा ही है। छोटा डाइपोल छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है। लेकिन इतना बड़ा अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं। सो वी हैव टू डू दिस। देन एम एस बराबर कितना है? लगभग एस एच, और एस एच जो है वो है ओ एच माइनस ओ एस। और ओ एस देखिए ओ एच माइनस ओ एच उल्टा हो गया, ओ एस माइनस ओ एच। और ये एंगल थीटा है, ये इसके लिए बेस है, ये एल है, तो ओ एच को हम लिख सकते हैं ये ओ एस बराबर तो आर पहले माने हुए हैं शायद, एम एन ओ एस बराबर आर यहाँ माना हुआ है। देन इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? आर माइनस एल कॉस थीटा। उसी तरह से एम एस हमने निकाल दिया, और इसी तरह डी एस अगर हम कहें या एस डी जो भी लिखें डी एस, ये भी लगभग बराबर हम कहेंगे डी एस बराबर एन एस, और हाँ डी एस बराबर एन एस। ठीक है, जैसे वहाँ एम एस लिखा है एम एस, तो ये एन एस बराबर है लगभग डी एस। लगभग इस पर या और निशान यहाँ होता, थोड़ा और इधर कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ज़रा सा और इसको इधर करना चाहिए। चलिए देखने में नहीं लगता है, लेकिन बात वही है। ये दूरी लगभग बराबर ये दूरी, और ये दूरी बराबर इतना प्लस इतना, तो हम लिखेंगे डी एस लगभग बराबर एन एस, और ये बराबर ओ एस प्लस ओ डी, और ये ओ डी भी होगा एल कॉस थीटा, बिकॉज के ये एंगल थीटा, तो इसके का ये बेस है, बेस बराबर होता है हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। देन हाइपोटेनस इज ओ एस बराबर एल, और प्लस ये ओ एस बराबर आर लिखा हुआ है, ओ एस बराबर आर प्लस ओ डी बराबर एल आर प्लस ये एल कॉस थीटा। ओके, डी एस बराबर, इसलिए अब हम लिखेंगे, इसलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट एस ड्यू टू एट पॉइंट एस, यहाँ ड्यू टू लिख दें, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट एम इज कितना होगा बताइए? ये दूरी बराबर इस दूरी के है, एच एस के लिखा है ना, एम एस बराबर एस एच लगभग बराबर, तो ये बराबर होगा कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, और यहाँ चार्ज प्लस क्यू है, और यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है एस पॉइंट पर, इस पर चार्ज इतना है। यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए क्यू चार्ज के चलते कितना लिखते हैं? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू यहाँ चार्ज है बाय आर की जगह क्या लिखेंगे? एस एच बराबर इसको हम लोग लिखेंगे ओ एस, यहीं पर हम लिख देते ओ एस माइनस ओ एच, ये हो गया प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एच माने है आर, एस एच आर है, ओ एस आर है, ये ओ एस आर है,
तो आर माइनस ओ एच है एल कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ओ एस होगा कहीं पर, ये ओ एच होगा, ओ एच यहाँ है, एस एच ओ एस माइनस ओ एच ये है एल कॉस थीटा। तो ये आर माइनस एल कॉस थीटा हो गया, प्लस क्यू बाई इतना। उसी तरह से ये हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल लिख लिया, गलत, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग। हालांकि मैग्नेटिक में भी वैसा ही होता है, बट वी आर टॉकिंग अभी इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक में होता तो यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाता है, यहाँ बड़का क्यू की जगह छोटा एम हो जाता है, एंड सो। तो इसी तरह फिर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ पे, एट पॉइंट एस ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट कहाँ, माइनस क्यू एट एन इज कितना लिखेंगे इसको, अच्छा ये प्लस चार्ज के चलते हैं तो हम इसको पोटेंशियल लिख देते हैं इज वी प्लस, यहाँ इसको लिख देंगे इज वी माइनस चार्ज के चलते। ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह टर्म कांस्टेंट है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैट के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एस डी, ये माइनस क्यू बाई एस डी माइनस ओ एस, नहीं एट पॉइंट एस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ ठीक है, एट पॉइंट एन ये इतना हो जाएगा, ये होगा ओ एस डी माइनस क्यू बाई एस डी, ये बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू बाई एस डी की जगह लिखेंगे हम ओ एस प्लस ओ डी, ओ एस प्लस ओ डी। इसका मतलब होगा ये माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू बाई ओ एस माने आर प्लस ओ डी, ये आर प्लस एल कॉस थीटा, ओके। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। प्लीज़ यू नोट प्लीज़, ओके। नाउ आई राइट इधर, ठीक है, हाँ। से इसलिए सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट एस ड्यू टू द डाइपोल mn इज कितना, v बराबर ये v प्लस v माइनस, ओके। एंड ये v प्लस v माइनस मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर माइनस एल कॉस थीटा, q बाई आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस q, हाँ ये माइनस q बाई आर माइनस एल कॉस थीटा एंड प्लस माइनस q बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा q कॉमन, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये माइनस होगा यहाँ, प्लस इसके चलते हैं माइनस q बाई आर माइनस एल आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस q बाई आर प्लस एल कॉस थीटा, ओके। ये बराबर हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q बाई, ये दोनों का एलसीएम, ये q आ जाएगा कॉमन, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा, हाँ ये r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस एल कॉस थीटा, ये दोनों को जोड़ दिया हमने, ये बाई कितना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रो, यही इतना, ओके। अब देखिए इससे ये टर्म कट गया, r कट गया, ये बराबर बचा है q इंटू 2l कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। एंड q इंटू 2l को आई हैव ऑलरेडी टोल्ड p माने डाइपोल मोमेंट, ये p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका व्हाट इज दिस, दिस इज वी। अब एक्चुअली होता ये है वी माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पर निकला ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एस, ठीक है, एट पॉइंट एस इज दिस मच, वी बराबर इतना। नाउ इन प्रैक्टिस ये वी बराबर दैट इज़ वी बराबर कितना, ये पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ वी बराबर। नाउ यू सी इन प्रैक्टिस होता ये है ओके, नोट कर लीजिए ज़रा, नोट कर लीजिए, इधर मिटा दें। दैट इज़ वी बराबर ये हो गया पी कॉस थीटा, उसी बात को यहाँ उतार रहे हैं बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट इन प्रैक्टिस होता ये है कि इन प्रैक्टिस ये फिगर में इन प्रैक्टिस जो होता है ये आर इज़ वेरी इन लेस दैन, कितना, आर इज़ वेरी लेस दैन एल कॉस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, आर इज़ वेरी ग्रेटर दैन एल कॉस थीटा, और सो या एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस एल कॉस थीटा का जितना रूट करेंगे ना वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, दैट इज़ आर स्क्वायर इज़ वेरी लार्ज। ओके, वो ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये थोड़ा लेट हो गया, मैंने वो इसमें गैप हो गया। ओके, तो यू सी यहाँ आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, अगर ये बहुत बड़ा है देन दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस इज़ नेग्लिजिबल। वाई, बिकॉज कैसा वो जब बहुत आर बड़ा होगा तो कॉस थीटा जैसे जैसे बढ़ता है ना उसका वैल्यू घटता है, तो ये और घटता जाएगा, थीटा के बढ़ने के साथ कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीजेस, तो इसलिए ये और कम हो जाएगा। सो इन प्रैक्टिस इतना बराबर इतना, इसलिए वी बराबर आप लिख सकते हैं पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट एस ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल के चलते इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल का फार्मूला है। हेयर पी इज़ डाइपोल मोमेंट, हेयर आर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट एस, माने ओ एस बराबर आर है, एंड थीटा दिस एंगल इज़ थीटा। दरअसल डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने बताया था नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे है इस डायरेक्शन के साथ इसका कोण माने ये थीटा एंगल बिटवीन, कोई पूछे क्या है थीटा किसके बीच का कोण, तो डाइपोल मोमेंट और आर के बीच का कोण, आर का ये डायरेक्शन, दिस इज आर का डायरेक्शन। ओके, नाउ वी सी के हाउ विल बी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, V is electric potential. Now we will determine electric field, and electric field का फार्मूला people know कि साहब E बराबर होता है E बराबर होता है माइनस से E इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए E इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर होगा E बराबर माइनस dV बाई डी आर, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। अब यहाँ डी आर आर ये है, आर ये थोड़ा बढ़ेगा तो आर के बढ़ने के साथ थीटा भी बढ़ेगा, तो ऐसी हालत में हम लिखेंगे E बराबर एक होगा, ये आर के बढ़ने के साथ बढ़े, एक है कि थीटा के बढ़ने के साथ बढ़े, आर कांस्टेंट न रहे, सीधे ऐसे माने थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, आर को बढ़ा देंगे, आर ऐसे बढ़ेगा वो इस लाइन पर, और अगर आर कांस्टेंट रखेंगे थीटा बढ़ेगा तो ये लाइन ऐसे घूमेगा, तो इसलिए इसका दो डायरेक्शन होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन अगर हम लिख दें ये ओ एस
OS के डायरेक्शन में, OS OT जो लिख लीजिए, OS और OT, एनीथिंग यू मे राइट, इज ER, इसलिए कि R है ये ER होगा। ये बराबर होगा माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमने बताया पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट ही फील्ड है। देन इट इज़ माइनस dV बाई dr, ये बराबर माइनस d बाई dr, एंड v की जगह पर वी विल राइट p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एंड ये इसमें देखिए सारा टर्म कांस्टेंट होगा, 1 बाई r स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस 2 बाई r क्यूब आ जाएगा। d बाई dr r पावर माइनस 2 बराबर माइनस 2, r का पावर माइनस 2 माइनस 1 मैंने माइनस 2 बाई r क्यूब, उस माइनस से ये प्लस होगा, ये हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमने लिया है, लिखा है इन डायरेक्शन OS और OT। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में ये थीटा बढ़े, ऐसे बढ़े, यानी अगर ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आगे इसको बढ़ाएं, देन फील्ड इज दिस, इसको कहते हैं रेडियल फील्ड। ये रेडियल फील्ड कहलाता है, रेडियस के डायरेक्शन में बढ़ेगा रेडियल फील्ड, ठीक है। रेडियल R के बढ़ने से बढ़ा है, और इसको ER इसीलिए कहा। अब दूसरा जो होगा वो होगा E थीटा, थीटा के बढ़ने से, E थीटा टेंजेंशियल फील्ड ये कहलाएगा, टेंजेंशियल फील्ड E थीटा, ठीक है। ये अब ये अगर हम इस लाइन को ऐसे घुमाएं तो फील्ड कितना होगा, दैट इज़ कॉल्ड E थीटा, एंड इट इज़ रिटन एज टेंजेंशियल फील्ड, ओके। ये है, तो ये बराबर कितना होगा, ये होगा माइनस dV बाई, ये देखिए ये जब ऐसे घूमेगा थोड़ा सा थीटा कोण से, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा आर्क बनेगा, जो हम फिगर में नहीं बनाना चाहते, फिगर हेजी हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो RD थीटा इसको हम लिख सकते हैं, माइनस थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये आर्क बराबर होता है ना, थीटा बराबर L बाई R, L बराबर थीटा R, ऐसे जो हम कर रहे हैं ये आर्क है, आर्क बराबर होगा R इंटू थीटा, यानी छोटा कोण के लिए RD थीटा, माइनस dV बाई RD थीटा। अब ये माइनस d बाई RD थीटा हो गया, और v की जगह लिखेंगे वही जो अपने लोगों का है, p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है R स्क्वायर। देन अगेन इस cos थीटा का डिफरेंशियल होगा, R कांस्टेंट है, ये cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये p साइन थीटा हो गया, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हुआ, है ना। ये कितना हो गया, ये E थीटा बराबर p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब ये ER और E थीटा, इसको कहते हैं, ये रेडियल डायरेक्शन में है, ये रेडियल फील्ड है, ये टेंजेंशियल है। और रेडियस हमेशा टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो हम इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। V निकल गया, V में ये कोई ज़रूरत नहीं, V पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्केलर होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन फील्ड जो है वेक्टर होता है, इसको वेक्टर के इससे जोड़ना होगा। देन आई राइट हेयर, प्लीज़ यू मे नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम ये करते हैं यहाँ, देखिए इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये बराबर होगा ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर का रूट, या पावर हाफ इसको कह लीजिए, पावर हाफ दिस। अब ER स्क्वायर, ER अपने लोगों को मालूम है, ये बराबर हो गया 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस p साइन थीटा, प्लस कितना है यहाँ p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी R क्यूब, इसका स्क्वायर, ओके।
अब ये बराबर हो गया आपके, देखिए 1/4πε0 r³। अच्छा ER² पावर हाफ करना है, इसका पावर हाफ रूट, तो ये हो जाएगा p² cos² थीटा, 4p² cos² थीटा, p² sin² थीटा, p² कॉमन आएगा, एक cos² थीटा प्लस sin² थीटा ये 1 हो जाएगा। ये बचेगा p/4πε0 r³, ये बचेगा √1 + 3 cos² थीटा, 3 cos² थीटा। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर इतना। ये रेडियल फील्ड है यहाँ, दिस वाज रेडियल फील्ड, दिस इज टेंजेंशियल फील्ड एंड दिस इज रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा, इसका ये फार्मूला है। तो अब देखिए कि साहब वो एंगल क्या होगा। अब ई, अच्छा ER इधर है, Eθ इधर है, इस दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन है, याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं ये रेडियल फील्ड इधर होगा, रेडियस के अलॉन्ग हो गया, रेडियस ऐसे है ये दूरी, दिस इज़ रेडियल फील्ड इस फिगर में। और ये ऐसे जो हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल फील्ड। टेंजेंशियल था टू r/d किया था कि ऐसे अगर ये घूमे नाचे तो ये थोड़ा सा ऐसे अगर करेंगे तो θ/d से बढ़ेगा, इसका ये डायरेक्शन है। इसमें याद रखिएगा ये है टेंजेंशियल फील्ड, ये टेंजेंशियल फील्ड। और ये जो हमने निकाला टेंजेंशियल फील्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना था, कितना था Eθ बराबर यहाँ लिखा है कहीं पर, यहाँ p sin θ इतना, दिस वाज टेंजेंशियल फील्ड यहाँ लिखा, यहाँ रेडियल फील्ड लिखा। और ये जो है, ये जो अभी निकाला दिस इज़ रिजल्टेंट फील्ड, ये रिजल्टेंट फील्ड का ये डायरेक्शन है, रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड। अब इसको अगर हम लोग फाई मान लें, ये फाई मान लो, देखो ये और ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियल और टेंजेंशियल। ER हमेशा याद रखना है, ER माने रेडियल फील्ड वेक्टर के टर्म में, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा Eθ पर। क्यों? बिकॉज के टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ER परपेंडिकुलर होगा Eθ पर। तो ऐसी हालत में अगर ये एंगल फाई हो तो हम लोग tan फाई निकाल सकते हैं, tan फाई। ये फाई क्या क्या है, ये रिजल्टेंट फील्ड और इसके बीच का एंगल है, फाई है रिजल्टेंट फील्ड और रेडियल फील्ड के बीच का एंगल, और थीटा है या ये जो एंगल हो गया ये है टेंजेंशियल फील्ड, टेंजेंशियल फील्ड और इसके बीच का एंगल होगा 90 - फाई, यानी tan फाई की जगह फिर लिखेंगे यहाँ दिस इज 90 - फाई। इसको क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज 90 - फाई, फाई 90 - फाई, साफ साफ लिख देते हैं 90 - फाई, ये हो गया ये फाई। तो ER है, ER बराबर कितना है जी, ER को क्या कहेंगे, ER इज रेडियल फील्ड और दिस इज टेंजेंशियल फील्ड। तो अगर हम लोग कर लें इसमें ER/Eθ भी कर लें, ER/Eθ माने ये इधर थीटा का ये है E फाई, तो फिर tan थीटा भी आ जाएगा, यानी दोनों के बीच का tan फाई अगर हम निकालना चाहें शॉर्ट में, अगर हम कहें दैट इज़ tan फाई, tan फाई। ये बताइए क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो tan फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर बट्टे बेस, यानी E फाई बाई Eθ, E फाई बाई ER, सॉरी E फाई बाई ER। E फाई कितना है, E फाई निकाला है Eθ, अच्छा E फाई बाई Eθ नहीं tan फाई, तो Eθ बोलिए ना, ये हो गया Eθ बट्टे E फाई, ठीक है। तो Eθ बाई ER, हाँ, तो ये कितना हो गया, Eθ कितना है, Eθ है p sin θ बाई 4πε0 r³ और ER है 2p cos θ बाई इतना। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे यहाँ से Eθ बाई E फाई से, तो देखिए सब कुछ कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 tan θ। इसका मतलब दैट इज़ फाई बराबर कितना हो गया, फाई बराबर tan इनवर्स हाफ tan θ। देन दिस इज़, ये फाई का एंगल है, फाई कौन एंगल हो गया, रिजल्टेंट के बीच का एंगल, रिजल्टेंट फील्ड और रेडियल फील्ड के बीच का एंगल। ओके, अब इसमें देखिए, अब इसमें दो पोजीशन और हम लोग बताते हैं, मिटा दें, हाँ ओके ठीक है। अब यहाँ देखिए कि साहब अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, इम्प्लाइज थीटा 0 होने का क्या मतलब, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये लाइन ऐसे हो, इस पर हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो,
देन इम्प्लाइज के कॉस थीटा बराबर 1 होगा ना, जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ 1 होगा, साइन थीटा जहाँ है तो 0 होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट फील्ड ई है, ई बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1। ये इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन थीटा बराबर चाहे 0 हो या 180 डिग्री हो, एक बात भी है, एक और है, थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री कुछ ले सकते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों हो सकता है। 0 डिग्री होने का मतलब ऐसे, 180 डिग्री होने का मतलब ऐसे। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 1 नहीं हो के कहेंगे प्लस माइनस 1 दोनों हो गए, बिकॉज के कॉस 180 डिग्री -1। देन इम्प्लाइज के ई रिजल्टेंट फील्ड ई बराबर कितना होगा, देखिए चाहे ये +1 हो या -1 हो, कॉस थीटा का मान स्क्वायर तो प्लस ही होगा। देन ई बराबर होगा कितना, 2p बाई 4πε0 r3। और इस पोजीशन को कहेंगे हम लोग, अब v बराबर कितना होगा, v कितना था अपने लोगों का, p cos थीटा बाई 4πε0 r² था शायद, v बराबर वही था। v पोटेंशियल निकाला था p cos थीटा बाई 4πε0 r²। तो v cos थीटा 0 होगा, 180 में भी वो ये होगा माइनस होगा, तो इतना हो गया cos थीटा प्लस -1, 3 1 4 हो गया, ठीक है। और वहाँ कितना था, v में p cos थीटा ही था, उसी का डिफरेंशियल किया है शायद, ई आर बराबर 2p cos थीटा बाई 4πε0, v बराबर p cos थीटा ही था। तो v बराबर भी हो जाएगा कितना, v कितना आया था, p cos थीटा बाई 4πε0 r²। थीटा बराबर प्लस -1 होगा, वो होगा p cos थीटा बाई 4πε0 r²। ये v होगा, r² होगा यहाँ, ये v होगा। और इस पोजीशन को इम्प्लाइज एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन लोग कहता है, याद रखिएगा, एंड ऑन पोजीशन, या इसका नाम एक्शियल पोजीशन है अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है, एक्शियल पोजीशन। ओके। एंड दूसरी चीज़ कि साहब थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, 270 डिग्री इम्प्लाइज थीटा 90 हो, यानी ये लाइन ऐसे नहीं हो कि ऐसे हो, दिस, तो वैसी हालत में cos थीटा तो 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 होता है। 0 होगा तो ई बराबर कितना होगा, ई बराबर होगा cos 270 भी 0 होता है, वो भी 0 होता है, cos 0 1, तो ई बराबर होगा p बाई 4π कितना 4πε0 r³, ये इतना होगा। ये ई 0 नहीं होगा, लेकिन v जो है 0 हो जाएगा। अच्छा इम्प्लाइज इसमें लिखा नहीं, cos थीटा पहले लिख देते। cos थीटा कितना हो, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो cos थीटा बराबर 0, cos 180 -1 होता है, cos 270 0 होता है, फिर 300 यहाँ 270 हो जाएगा, ऐसे करने पर इधर 0, इधर ऐसे कर लेंगे 270। तो वैसी हालत में ये इतना 0 होगा। इम्प्लाइज कितना लिखा हमने, ई बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा 0, माने थीटा 0 या 90 180 पर cos थीटा 0 हो गया, तो ई बराबर होगा p बाई 4 cos थीटा 0 हो गया, cos स्क्वायर थीटा भी 0 हो गया, यानी ये पूरा टर्म 0। ई बराबर कितना हुआ, p बाई 4πε0 r³, चाहे थीटा 90 हो या 270 हो, 4πε0 r³ हो गया। एंड v बराबर कितना हुआ, v बराबर कितना हुआ, cos थीटा वहाँ +1 -1 था, यहाँ v लिखा है, यहाँ भी v लिखेंगे। v बराबर कितना होगा, v cos थीटा 90 0 है, तो v भी 0 होगा, इसलिए कि v में था p cos थीटा बाई 4πε0 था ना, यहाँ लिखा है ना v का मान, जहाँ थीटा 90 हुआ तो cos 90 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो v बराबर 0 होगा पोटेंशियल। और ये इम्प्लाइज कौन पोजीशन इसको कहेंगे, थीटा 90 होने पर इसको कहेंगे इक्यूटोरियल पोजीशन, माने ये पोजीशन को इक्यूटोरियल पोजीशन, ये पोजीशन को एक्शियल पोजीशन हमने यहाँ लिखा है, और इस पोजीशन को इक्यूटोरियल, या दूसरा नाम भी है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इम्प्लाइज क्या लिखेंगे यहाँ, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या और इसका नाम और इक्यूटोरियल पोजीशन, इक्यूटोरियल पोजीशन, इक्यूटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान किसी पोजीशन में, किसी जगह पर। कोई ज़रूरी नहीं कि साहब वो
निकाला जाए हमेशा इसी पोजीशन पर कहीं ले सकते, कहीं के लिए भी अपने लोगों का फार्मूला है, कहीं के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है, कहीं के लिए पोटेंशियल का वो फार्मूला था P cos थीटा बाई 4πε0 r², जिसको हम लोग लेके बढ़े हैं। देन इसी के साथ दिस चैप्टर गॉट्स फिनिश्ड। अगले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे। इसी के साथ इस चैप्टर का दी एंड। बहुत सारी बात इसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या क्या जोड़ के। ओके।